اور اب آپ کو بتائیں کہ تاریخ کے جھروکوں سے شکارپور ماضی کا پیرس، آج کا اجڑتا شہر، تخت و تاج کے مختلف ادوار میں 200 سال تک برِ صغیر کا مرکز رہا۔ یہ وہ شہر تھا جس نے تجارت، بینکاری، علم، تہذیب اور فن تعمیر میں وہ مقام حاصل کیا جو اس دور کے بڑے بڑے شہروں کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔ آئیے دیکھتے ہیں شکارپور پر بنائی گئی چینل 5 نیوز کی خصوصی ڈاکیومنٹری۔ شکارپور سندھ کی تاریخ اپنی مثال آپ ہے، ایک ایسا شہر جسے کبھی سندھ کا پیرس اور وسطی ایشیا کا گیٹ وے کہا جاتا تھا۔ یہ وہ شہر تھا جس نے تجارت، بینکاری، علم، تہذیب اور فن تعمیر میں وہ مقام حاصل کیا جو اس دور کے بڑے بڑے شہروں کو بھی نصیب نہ ہو سکا۔ شکارپور کی بنیاد سن 1617 میں داؤد پوتا قبیلے نے رکھی۔ یہ علاقہ ابتدا میں گھنے جنگلات پر مشتمل تھا جہاں شکار کھیلا جاتا تھا، اسی نسبت سے اس کا نام شکارپور رکھا گیا۔ درہ بولان کے قریب ہونے کے باعث یہ شہر افغانستان اور وسطی ایشیا سے آنے والے قافلوں کا اہم مرکز بن گیا، اور یہاں دنیا بھر سے تجارتی قافلے آتے، قافلہ قلعہ شہر میں قیام کرتے اور پھر آگے روانہ ہوتے۔ 18ویں صدی میں کلوڑوں اور پھر تالپور حکمرانوں کے دور میں یہ شہر عروج پر رہا۔ یہاں سے وسط ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان تک تجارت کا سلسلہ مضبوط تھا۔ قیام پاکستان سے قبل شکارپور کا اپنا الگ سکہ بھی چلتا تھا اور افغانستان کے ذریعے دنیا بھر میں تجارت شکارپور کے ذریعے ہوتی تھی۔ اسی دور کی مضبوطی یہ تھی کہ شکارپور دنیا کے بڑے مالیاتی مراکز میں شمار ہوتا تھا اور یہاں کے تاجروں نے ہنڈی کا ایسا نظام قائم کیا جو بخارا، سمرقند اور روس تک میں قابل قبول تھا۔ شہر قلعہ نما تھا اور حفاظت کے لیے 8 تاریخی دروازے تعمیر کیے گئے جن کے نام آج بھی شہر کی شناخت ہیں، جن میں لکی در سب سے نمایاں ہے، جہاں سن 1935 میں تعمیر ہونے والا گھنٹہ گھر آج بھی موجود ہے۔ ہاتھی در وہ راستہ تھا جہاں سے شاہی ہاتھی گزرتے، اس کے علاوہ کرن در، ہزاری در، خانپور در، سوی در، واگنو در اور صدیق ماڑی شامل ہیں۔ تاریخی ڈھگ بازار لکڑی کی چھت والا بازار تھا جسے اس لیے ڈھکا گیا تھا تاکہ شدید گرمی میں بھی تجارت جاری رہے، اور یہاں آگ بجھانے کا خصوصی انتظام بھی موجود تھا۔ شکارپور کی شہری منصوبہ بندی اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ کراچی کے بعد زیر زمین نکاسی آب کا نظام شکارپور میں موجود تھا۔ شہر کی سڑکیں اور بازار روزانہ دھلتے تھے اور لوکل براڈ کاسٹنگ کا نظام جمانی ہال سے چلایا جاتا تھا۔ بیگاری نہر شاہی باغ کے قریب ایک تفریح گاہ تھی جہاں گرمیوں میں نہانے کے لیے مردوں اور خواتین کی الگ الگ جگہیں مختص تھی۔ شکارپور تعلیمی، صحت، تجارت، تہذیب و ثقافت کے علاوہ بزرگان دین کا بھی شہر رہا۔ یہاں متعدد مزارات ہیں جہاں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں، جن میں الف شاہ شہید، حاجی فقیر اللہ علوی اور حاجی لطیف شاہ کے بڑے مزارات کے علاوہ بے شمار بزرگوں کے مزارات شامل ہیں۔ شہر میں دنیا بھر میں مشہور ہندوؤں کا تاریخی مندر آج بھی موجود ہے جہاں ہندو آج بھی حاضری دیتے ہیں اور میلہ بھی لگتا ہے۔ قیام پاکستان سے قبل صرف کراچی، حیدرآباد اور شکارپور میں اہم تعلیمی ادارے ہوا کرتے تھے۔ C&S گورنمنٹ کالج اور گورنمنٹ ہائی اسکول کی عمارتیں تاریخی حیثیت کی حامل ہیں جہاں مشہور شخصیات نے تعلیم حاصل کی۔ صحت کے شعبے میں موجودہ ڈسٹرکٹ اسپتال قیام پاکستان سے قبل رائے بہادر ادھم داس نے اپنی والدہ کے کہنے پر بنایا، کیونکہ علاقے میں کوئی اچھا ہسپتال نہیں تھا اور انہیں اپنی والدہ کو علاج کے لیے بمبئی لے جانا پڑتا تھا۔ واپسی پر اسپتال تعمیر ہوا، اس کے مرکزی دروازے پر پیتل کے الفاظ میں نام لکھوایا گیا۔ والدہ ناراض ہوئی تو نام گیٹ کے فرش پر منتقل کیا گیا اور لوگ اس نام پر چل کر اسپتال میں داخل ہوتے تھے۔
शिकारपुर का जिक्र हो और यहाँ के जायकों का जिक्र ना आए ये मुमकिन नहीं। शिकारपुर के अचार और मिठाइयाँ पूरे बड़े सगीर में मशहूर हैं। खास तौर पर पानी और सरसों के तेल से बनने वाले अचार और आम, लीमू, गाजर और गोश्त के अचार, चिकन और बीफ के साथ दीवान रामचंद की कुल्फी फालूदा की शोहरत पूरे सिंध में रही। शिकारपुर की कदीम हवेलियाँ खुशहाली की अलामत थी। नफीस लकड़ी का काम, बुलंद छतें, रोशनदान और जेर जमीन तहखाने ने इस दौर की आसूदगी की तस्वीर थे। मगर बदकिस्मती से 1947 के बाद बहुत सी इमारतें खस्ताहाली का शिकार हुईं और कई कीमती लकड़ी के दरवाजे निकाल कर बेच दिए गए। इसी शहर ने अदब, सहाफत और इल्म में नाम पैदा किया। सितारा सिंध और शिकारपुर टाइम जैसे अखबारात शाया होते थे और सिंध के अजीम शायर शेख अयाज भी शिकारपुर में पैदा हुए। सियासी तौर पर भी शिकारपुर का अहम मकाम रहा। क़याम पाकिस्तान से कबल शिकारपुर जिले की हदूद दादू और नवाबशाह तक थी। अंग्रेज दौर में जिले हैसियत खत्म करके सखर को जिला बनाया गया। भुट्टो दौर में दोबारा जिला बना, मगर 1977 के मार्शल लॉ में जिला कुछ अरसा मुअत्तल भी रहा। 1970 से कबल कौमी असम्बली के इलेक्शन में शिकारपुर में मुकाबला हाजी मौला बख्श सोमरो और आगा गुलाम नबी के दरमियान होना था। पीपल्स पार्टी बनने के बाद आगा गुलाम नबी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, मगर हाजी मौला बख्श सोमरो ने आजाद रहकर गुलाम नबी पठान को हराया। हाजी मौला बख्श जनरल जिया के सियासी मुशीर भी बने। भुट्टो दौर में सोमरो खानदान सियासी अताब का शिकार भी रहा। 1985 में इलाही बख्श सोमरो रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो वफाकी वजीर भी रहे। बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और कौमी असम्बली के स्पीकर भी मुंतखब हुए। शिकारपुर की सियासत के अहम नामों में हाजी मौला बख्श सोमरो, रहीम बख्श सोमरो, इलाही बख्श सोमरो, हाजी कोड़ा खान, आगा गुलाम नबी खान, आगा अता मोहम्मद, अल्ताफ भेो, मौलाना मोहम्मद शाह अमरोटी, गुलाम आफ्ताब मीरानी और आगा सिराज दुरानी शामिल रहे, जो अब दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर इब्राहिम जोतोई हर बार पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे। बाद में पुराने सियासतदानों में गौस बख्श मेहर और डॉक्टर इब्राहिम जोतोई और उनके भाई आबिद हुसैन जोतोई हयात हैं। और सियासी विरासत में शहरियार मेहर, आरिफ मेहर, बाबुल भेो, आबिद भेो और आगा शहबाज दुरानी अपने बड़ों की जगह संभाल चुके, जबकि सोमरो खानदान शिकारपुर की सियासत से तकरीबन खत्म हो चुका। शेख फैमिली शहर की सियासत में नुमाया रही, जो पीपल्स पार्टी में है। इम्तियाज अहमद शेख और उनके भाई मकबूल अहमद शेख सियासी तौर पर अहमियत रखते हैं। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और टीवी चैनल्स मेट्रो वन न्यूज और चैनल 5 न्यूज के चेयरमैन खालिद अराई का ताल्लुक भी शिकारपुर से है। और ये पहला मौका है कि सिंध काबीना में शिकारपुर का कोई सियासतदान वजीर नहीं। वक्त के साथ शिकारपुर की वो खुशहाली, वो नज़्म ज़ब्त और वो सहूलियात कम होती गईं। शहर के चारों अतराफ बनाया गया सर्कुलर रोड आज भी मौजूद है, मगर खस्ताहाली और तजावुजात का शिकार है। क़याम पाकिस्तान से कबल और बाद में सदर के इलाके में शिकारपुर का अपना पावर हाउस था, जहाँ से बिजली फराहम की जाती थी और लोड शेडिंग का तस्वुर नहीं था। बिजली भी सस्ती थी। घंटा घर पर शिकायती मरकज आज भी मौजूद है, मगर अब कई दिहाइयों से बिजली की फरहमी और लोड शेडिंग की शिकायत उरूज पर है। क़याम पाकिस्तान से कबल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाख शिकारपुर में भी थी, जिसकी अब सिर्फ इमारत बाकी रह गई है। तरक्याती तसलसल ना रहा। इफ्तिखार सोमरो ने कॉलेज बनवाया। जैकबाबाद खानपुर रोड पर बाईपास भी बना। तरक्याती तसलसल ना रहा। इफ्तिखार सोमरो ने अपने वालिद हाजी मौला बख्श के नाम से HM लॉ कॉलेज बनवाया। जैकबाबाद खानपुर रोड पर बाईपास भी बना, मगर मजमूई तौर पर तरक्की कोई खास नहीं हुई। बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ी। शहर की सनतों की बंदिश भी सामने आई। सिंध फाइन टेक्सटाइल्स मिल्स, 7 अप, मेहरान घी की फैक्ट्री और PNP राइस मिल्स बंद हो चुके हैं। अब शिकारपुर की कहानी एक कड़वी सच्चाई बनकर रह गई है। शहर के बाजारों में दुकानदारों ने दुकानें आगे बढ़ाकर तंग गलियां बना दी हैं, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। दाखिली रास्तों से लेकर कदीम बाजारों तक जगह जगह कचरे के ढेर, उबलते गटर, टूटी सड़कें और बदबूज़दा नाले मामूल बन चुके हैं।
म्युनिसिपल कमेटी सफाई के बुनियादी फराइज अदा करने में नाकाम दिखाई देती है। पीने का साफ पानी नायाब है और लोग आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस हैजा, इसहाल और जल्दी अमराज आम हैं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत, पुराने आलात और अमले की कमी ने सेहत के निज़ाम को मफलूज कर रखा है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार, तालीम और घरेलू जिंदगी मुतासिर कर दी है। मुतबादिल तवानाई या सनती जोन का कोई अमली मंसूबा नजर नहीं आता। कच्चे के इलाके में बदअमनी और डाकुओं की सरगर्मियों ने देही आबादी ही नहीं, शहर की मईशत को यरगमाल बना रखा है। कच्चे के इलाके से अगवा की वारदातें जरूर कम हुई हैं, मगर जिले में कबायली खूनरेजी मुसलसल जारी है। जिले भर में महर, जुतुई, मारफानी, तेगानी, जुनेजा और मंगजा कबाइल के झगड़े आम हैं, जिनमें काफी जानी नुकसान हो चुका है और कबायली झगड़े कंट्रोल नहीं हो रहे। नतीजा ये कि लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं, नौजवान रोजगार न होने के बायस शहर छोड़ रहे हैं और शिकारपुर जो कभी शहर नहीं बल्कि शहर मिसाल था, आज देहात का मंजर पेश कर रहा है और जराइम का गढ़ बनता जा रहा है। अवाम की निगाहें सवाल बनकर उठती हैं कि क्या ये तारीखी शहर सिर्फ वोट बैंक था या कभी वाकई इसके साथ इंसाफ भी होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने शिकारपुर को बराए नाम ही तरक्की दी और यही वजह है कि ये तारीखी शहर अब बड़े गांव का मंजर पेश कर रहा है और बेशुमार मसाइल का शिकार है।